Good morning students, welcome to your English class. Earlier we have studied about the sentences, what are phrases, what are clauses and what are sentences, and today we will continue our chapter. We have already completed this A part of this chapter. Now we are going to start the B part. Now add suitable words to complete these phrases and clauses from the and form sentence. So here are some blanks, here some blanks are given and some clause and phrases are given. You just have to complete it. You can complete it by yourself also, but for the help I'm just saying, I'm answering some of those. So third one, you can see in spring flower blossom in spring. So they did not go out to play. It rained last evening, so they did not go out to play. So you can add anywhere. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके आगे ही ऐड करना है. आप इस चीज़ का यूज़ कहीं भी आगे या पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. बिफोर शी वेंट टू बेड, बिफोर शी वेंट टू बेड. सो आप कह सकते हो she read a story before she went to bed. She read a story before she went to bed. Then the fourth one, if you help me, I will help you. If you help me, I will help you. You can write anything if you want. I'm just doing it my own way. Then the fifth one is Monday mornings. So you can write Monday mornings are too exciting. Monday mornings are too exciting. Sixth one, a new dress. So you can write she went to market to buy a new dress. She went to market to buy a new dress. Seventh one, because the test was difficult. You can say she scored less marks. She scored less marks because the test was difficult. Because the test was difficult. Eighth one, while my father made dinner, while my father made dinner, I cleaned my room. I cleaned my room. जब मेरे पिताजी खाना बना रहे थे तब तक मैंने रूम साफ कर लिया. Ninth one, when she lived in Paris, when she lived in Paris, she was happy. When she lived in Paris, she was happy. जब वो पेरिस में थी तब खुश थी. Now 10th one, his homework is not complete. His homework is not complete. You can simply just end the sentence, so don't need to make it more difficult. 11th one, as soon as you reach home, as soon as you reach home, you can call me. As soon as you reach home, you can call me. Now the last one, the tennis tournament will start tomorrow. The tennis tournament will start tomorrow. So I have completed it in my own words, so you can write your own. There's no any compulsory rules about it. You can place these phrases in the front or at the back, whatever you like. So just complete it and write it in your book. Now let's move ahead. Kind of sentences according to function. According to function, sentences can be classified into 4 kinds. So जो sentences हैं हमारे वो 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. मतलब वो जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमारे जो sentences है वो 4 टाइप्स के होते हैं. The 4 types are declarative, interrogative, imperative and exclamatory. So let's read one by one. First one is declarative sentence. These sentences state some facts. They are also called assertive sentences. We put a full stop at the end of the declarative sentences. For example, I study in class 7th. Ravi likes to play cricket. Mahima is cleaning her
कार। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें फैक्ट्स बताते हैं, जो हमें सच बात बताते हैं, कोई फैक्ट्स बताते हैं। इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे ही ख़त्म होता है तो हमें फुल स्टॉप पुट करना होता है, ना क्वेश्चन मार्क ना एक्सक्लेमेटरी साइंस, बस फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। आई स्टडी इन क्लास 7th, आप एक फैक्ट बता रहे हो, ठीक है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। रवि लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, रवि को क्रिकेट खेलना पसंद है। महिमा इज़ क्लीनिंग हर कार, महिमा अपनी कार क्लीन कर रही है। सो ये सब एक तरीके से फैक्ट है, आप कुछ बता रहे हो किसी को, तो ये सब क्या हो गए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू काइंड्स, एफर्मेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एफर्मेटिव एंड असर्टिव। असर्टिव तो डिक्लेरेटिव को कहते हैं, और जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव होता है उसे एफर्मेटिव कहते हैं। नाउ एग्जांपल्स, आई कैन प्ले द गिटार, ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। आपने यहाँ पे नो, नेवर, नन ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो ये एक पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसे एफर्मेटिव कहेंगे, आई कैन प्ले द गिटार। अगर मैं कहूँ आई कैन नॉट प्ले द गिटार, मैंने यहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ कर लिया, नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम एक नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। These sentences ask questions. We put a question mark at the end of an interrogative sentence. For example, when will you come to Delhi? Did you like the film? So, interrogative sentences वो होते हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, जो हमारे सवाल होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। सो लेट्स सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर 4 काइंड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब आपके सवाल भी 4 टाइप के होते हैं, देखते हैं। यस, नो, WH, टैग क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चन। तो थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस आर क्वेश्चन दैट नीड आइदर अ यस और नो आंसर। फॉर एग्जाम्पल, Are you American? No, I am not. Do you like ice cream? Yes, I do. So, yes no questions कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप yes या no में दे सकते हो। आपको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कुछ भी पूछे आप yes या no में कर उसका जवाब दे सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है कि Are you an American? क्या आप अमेरिकन हो? अगर हो तो हाँ बोलोगे, yes बोलोगे, अगर नहीं हो तो no बोलोगे। नेक्स्ट वन, डू यू लाइक आइसक्रीम? अगर हाँ तो आप कहोगे कि हाँ मुझे आइसक्रीम पसंद है, और नहीं तो ना। सेम अगर मैं आपसे पूछूं डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो आप बोलोगे यस या फिर नो। अगर कंप्लीट है तो यस, नहीं तो नो। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट, WH क्वेश्चन। WH question are the question that are asked using question words such as who, whom, what, when, where, why, how, which or whose. For example, what is your name? Where do you live? So WH questions वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम WH वाले क्वेश्चन वाले वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड जो हम मोस्टली क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और उनमें WH रहता है। लाइक who, कौन, whom, किसे, what, when, where, why, how, which, whose। तो ये सारे WH वर्ड्स हैं और सवाल पूछने के लिए जनरली काम आते हैं। तो इन्हें ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे WH क्वेश्चन। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सो दीज आर WH क्वेश्चंस। नाउ comes the third part, tag question. So tag question are interrogative fragments that are added at the end of the declarative or imperative sentence to form question. For example, your pet loves you, doesn't it?
दे हैवंट स्लेप्ट ऑफ, हैव दे? सो टैग क्वेश्चन वो होते हैं जो एक छोटे सा क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आप किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, मतलब एक सिंपल से सेंटेंस को अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, लास्ट में उसके छोटा सा एक पार्ट ऐड करके, तो उन्हें हम कहते हैं टैग क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, योर पेट लव्स यू, अगर हम ये डजंट इट वाला पार्ट कट कर दें तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देखिए, योर पेट लव्स यू, तुम्हारा जो पेट है वो तुम्हें प्यार करता है, दैट्स इट। पर हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन वाला पार्ट और ऐड कर दिया, डजंट इट, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तुम्हारा पेट तुमसे प्यार करता है, नहीं करता क्या? तो हमने आगे एक क्वेश्चन लगा दिया और इसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। सेम ही ऐसे है, दे हैवंट स्लेप्ट ऑफ, वो अभी तक सोए नहीं है, हैव दे, सो गए क्या? तो मतलब हमने उनके आगे एक छोटा सा पार्ट ऐड करके, एक टैग क्वेश्चन ऐड करके इसे पूरा टैग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। छोटा सा एक पार्ट ऐड करना और वो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चन। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, जैसे कि हमने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, तो जो टैग क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव लगेगा, मतलब उसके साथ नॉट, नेवर, नॉट वर्ड यूज़ होगा। जैसे कि योर पेट लव्स यू, यहाँ कोई नॉट वर्ड यूज़ नहीं है, तो उसके क्वेश्चन में आएगा नॉट, डजंट इट। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि दे हैवंट स्लीप, यहाँ पे नॉट आ गया, आप देख सकते हैं दे हैव नॉट स्लेप्ट ऑफ, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा, वहाँ पे कोई नॉट नहीं आएगा। सो इसके बाद हम चलते हैं चॉइस क्वेश्चन पे। चॉइस क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन दैट provide a choice. The answer to the choice question is the question itself. For example, would you like to go to Singapore or Bali? So choice question वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर उन क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, मतलब क्वेश्चन में ही आपको 2 चॉइस या 3 चॉइस या 4 चॉइस, जितनी भी चॉइसेस हैं आपको दी जाएगी और आपको उन चॉइस में से एक सिलेक्ट करना है। लाइक इफ़ आई आस्क यू, डू यू लाइक ब्लू कलर और रेड कलर, सो यू कांट से येलो कलर और ग्रीन कलर, आपको ब्लू या रेड कलर में से ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन में आपको वही दिया है, आपके पास चॉइस ही 2 हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके सवाल में ही 2 चॉइसेस दे रखी है और आपको उनमें से सिलेक्ट करना हो, तो वो क्या होगा, चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली, क्या तुम्हें सिंगापुर जाना चाहोगे या बाली जाना चाहोगे? सो आप नहीं कह सकते कि मुझे थाईलैंड जाना है, आपको सिंगापुर या बाली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कम्स imperative sentence. Imperative sentence. This sentence expressed a request, a command, or a piece of advice. For example, obey your parents and your teacher. Please make some coffee for me. You may take the metro up to Rajiv Chowk. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई रिक्वेस्ट हो या कोई कमांड हो, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन देना किसी को, या कोई पीस ऑफ एडवाइस हो। तो आप इन तीनों केस में देखेंगे कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए कहता है, चाहे वो रिक्वेस्ट करके हो या इंस्ट्रक्शन देके या फिर एडवाइस देके, उसे हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। लाइक सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ओबे योर पेरेंट्स एंड योर टीचर, तुम्हें अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात माननी चाहिए, तो ये एक तरीके का एडवाइस है। नेक्स्ट वन, प्लीज़ मेक सम कॉफ़ी फॉर मी, क्या प्लीज़ मेक सम कॉफ़ी फॉर मी, प्लीज़ सुनते ही आपको पता लग जाता है कि ये एक रिक्वेस्ट है। यू मे टेक द मेट्रो अप टू राजीव चौक, तुम मेट्रो ले सकते हो राजीव चौक तक, तो ये भी एक एडवाइस है। तो इन तीनों केसेस में आप देखोगे कि आप किसी और पर्सन को कुछ करने के लिए कह रहे हो, किसी भी वे में, चाहे इंस्ट्रक्शन हो या एडवाइस हो या कमांड हो। अब कमांड की बात करूं तो जैसे आपके टीचर्स कहते हैं कि बी क्वाइट और स्टैंड अप, तो वो क्या हो गया, कमांड हो गया, और वो कैसे सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. These sentences express sudden emotion and feeling. We put an exclamation mark at the end of exclamatory sentence. For example,
What a lovely idea it is. How beautiful the parrot is. So एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स होती है, और इन सेंटेंस के एंड में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, फुल स्टॉप नहीं लगाते, ना क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। और ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इमोशन या फीलिंग होती है। आपको ये सेंटेंस पढ़ के पता लग जाते हैं कि जो स्पीकर है उसका मूड क्या है या उसके क्या इमोशंस है। लाइक इफ समटाइम्स वी से ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो आपको पता लग जाता है आप कितने ज़्यादा खुश हो वो जगह देख के, या कितने एक्साइटेड हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के आगे क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। तो आपको सेंटेंस देख के पहचाना है वो किस टाइप का सेंटेंस है और उनके नाम लिखने आगे। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो? क्या कल बर्फ गिरेगी? तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है, और किस टाइप का क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, कि हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। नाउ सेकंड वन, न्यू लीव्स स्प्राउट ऑन ट्रीज। न्यू लीव्स स्प्राउट ऑन ट्रीज, नए पत्ते खिल रहे हैं पेड़ पे। एक तरीके का हम फैक्ट बता रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव फैक्ट है, यहाँ पे नॉट वर्ड यूज नहीं किया है। तो ये क्या होगा, एक एफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या होगा, एक एफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ द थर्ड वन, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी को हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होगा, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन, व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन। व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन, ये एक क्वेश्चन है, और ये किस टाइप का क्वेश्चन है, एक WH क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है व्हेन। तो व्हेन में WH आता है, आप लिखोगे WH क्वेश्चन। फिफ्थ वन, हाउ वंडरफुल ही सिंग्स। हाउ वंडरफुल ही सिंग्स, आप देख सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि हाउ वंडरफुली ही सिंग्स। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जब हम कह रहे हैं कि वाओ कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा गाता है वो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप लिखोगे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिक्स्थ वन, आई वॉन्ट फॉलो योर एडवाइस। आई वॉन्ट फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारे एडवाइस फॉलो नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी एडवाइस फॉलो नहीं करूँगा। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और इसमें नॉट आया है, तो ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप क्या कहोगे इसे, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या आप नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। नाउ द सेवंथ वन, हाउ मेनी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी कैसा है, ये WH क्वेश्चन है। आप देख सकते हो WH वर्ड हाउ यूज हुआ है, तो आप लिखोगे WH क्वेश्चन। नाउ द एट्थ वन, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द थीव्स। ये क्वेश्चन है, WH वर्ड है, यू हैव टू राइट WH क्वेश्चन। नाइन्थ वन, हुर्रा एक्सक्लेमेटरी साइन, वी हैव वॉन द मैच। तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जो स्पीकर है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि वो मैच जीत गए, और एक्सक्लेमेशन साइन है, इसलिए आप इसे लिखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टेंथ वन, टर्न राइट एट द कॉर्नर ऑफ द टेम्पल एंड वेट देयर टिल आई कम। आप कॉर्नर टेम्पल के राइट कॉर्नर पे मेरा वेट करो जब तक मैं वहाँ नहीं आता। तो ये क्या है, एक तरीके से एडवाइस है, या हम कह सकते हैं कमांड है, हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, हमारा वेट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। 11th वन, प्लीज नोट द होमवर्क इन योर डायरी। प्लीज नोट द होमवर्क इन योर डायरी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि अपना होमवर्क डायरी में नोट करो। रिक्वेस्ट हो गया, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। 12th वन, डू यू अंडरस्टैंड ओरिया। डू यू अंडरस्टैंड ओरिया, ओरिया इज ए लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन है,
तो हमसे पूछा है कि क्या आपको वो लैंग्वेज समझ आती है, तो आप बोलोगे हाँ अगर समझ आती है, नहीं आती तो ना। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये येस और नो वाला क्वेश्चन है। राइट डाउन येस नो क्वेश्चन। 13 विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोर, चॉकलेट और वनीला। ये क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे चॉइस दी हुई है कि आपको किस टाइप का आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट या वनीला। तो ये कौन सा हो गया, चॉइस क्वेश्चन। ये कौन सा है, चॉइस क्वेश्चन। 14 ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन इज ही इज़ प्लेइंग गोल्फ, वो गोल्फ खेल रहा है। क्या ये सवाल है, नहीं। क्या यहाँ इमोशंस है, नहीं। क्या हम किसी को कुछ करने को कह रहे हैं, नहीं। तो ये क्या है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पर कोई नॉट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एफर्मेटिव sentence. So I hope you have understood this part of the chapter. Go through it again so you can understand it well. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.